सवाल प्रोड्यूसर साहिबा के लिए है यहाँ पे, है ना? दिस वंस फॉर यू राजी। प्लीज हमको बताइए जोरावर की जर्नी की अगर बात करें, एंड हाउ आर यू एसोसिएटेड, खाली प्रोड्यूसर को छोड़ के उससे और 2 कदम आगे कैसे एसोसिएटेड है आपसे? First of all, I would want to thank all of you for coming out here and sharing this special moment, not just for PTC, for Honey and Zoravar. Thank you so much. PTC is a brand which has always been. पहले मुझे ये बताइए मैं हिंदी में बात करूँ या इंग्लिश में? हिंदी और फिर थोड़ी देर बाद पंजाबी. ओके, सो पीटीसी एक ब्रांड है जिसने हमेशा जो भी कंटेंट प्रोड्यूस किया है वो सिर्फ पंजाबीज़ के लिए ग्लोबली नहीं किया है, नॉन पंजाबीज़ के लिए किया है. एंड जोरावर इज़ एन एफर्ट दैट वी वांटेड टू डू. वी वांटेड टू मेक अ फिल्म जो इंटरनेशनली प्लेस्ड हो. इसीलिए इस फिल्म के लीड एक्टर हनी सिंह हैं. यो यस. सो फिल्म के बारे में ज़्यादा विनिल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी चीज़ें अबाउट आवर लीड एक्टर आई वुड वांट टू शेयर. वी हैव नोन हनी फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. 10 years almost. 11 years. More than, okay, he remembers 11 years. So Honey, we all know, is very talented. We are all aware of it. But what I would like to say here is that Pawan sir is here. So जोरदार तालियां Mr. Pawan Malhotra के लिए, who's playing an integral part of this movie. पवन जी आइए. So, talking about Honey again. So we all know he's extremely talented. But one thing amazing about him is that he's not just talented. The amount of effort, hard work, and dedication he puts in is amazing. It's not just 100%, it's more than 100%. I'm sure सारे एक्टर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है फिल्म स्केड्यूल करना, शूट करना, और टाइम्स पे शूट करना. बट इस रॉक स्टार के लिए ये कितना मुश्किल था ये सब हम जानते हैं, क्योंकि he was traveling, he was doing shows left, right, center, different countries, different time zones. He was all the way, and then the next day he was up in South Africa and he was shooting. It was not just about shooting in Chandigarh. We've shot this film in South Africa and London. And in between his shows, in between his timings, the man had no sleeping time, no eating time. He was just working tremendously for what? It was Zoravar. It's a Punjabi film, definitely, but it's a film which we want to place it internationally. And I'm very happy about the fact that the industry has supported PTC, Zoravar, Honey, all of us so well since the time we've been putting out the teaser out for the trailer today. There have been really, really messages coming and support coming that we love the movie. We would love the movie, we love the teaser, and we're waiting anxiously for the trailer. So in the end, I would just want to say one thing, that we always say that he's a gem of a person. Definitely, Honey is a gem of a person, but I would say he's the Kohinoor of our country. Whoa. He's the Kohinoor, and we must value, we love him, and I am very, very grateful to him for being the Kohinoor of this country and Kohinoor of Zoravar. Thank you so much. Thank you so much, Honey. Raji. I haven't finished as yet. I love to talk. Okay, so that was Honey. Then comes an amazing guy, whom, when we discuss the script and all that, is Vinil. Oh, thank you. Without... I was So- wondering who you're talking about. ओके, विनिल की जो एक अमेजिंग बात है कि वो बाकी डायरेक्टर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन विनिल हैज़ प्लेड द रोल ऑफ जस्ट नॉट बीइंग अ डायरेक्टर. ही इज़ हैंडल्ड द प्रोडक्शन, ही इज़ हैंडल्ड me, he's handled PTC, he's handled Honey, he's handled Parul, That's true, that's true. everybody. That's true. He's handled all of us. And when we would just go crazy about things, this man always kept his cool. Yeah, and the marketeer as well. ये फिल्म पवन जी के बिना जोरावर नहीं होती.
I just have no words to say, but again, I would say we've been very, very lucky. PTC has been very lucky. We have been very lucky. Zorawar has been very lucky that we've had best of everything. We had Parul, Achinti, Bani, and Pavanji, and Mukuldev. We've just been extremely blessed, and I would want all your blessings and support for all of us and Team Zorawar. And without White Umbrella movies, Umesh Kohli, Samir Khanna, Shilpa, all these guys, and my team PTC, this would not have been possible. वो Zada? नहीं नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत सही था, है ना। प्रोड्यूसर साहब को क्या बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पे डायरेक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू गेट होल्ड ऑफ दिस जेंटलमैन ओवर यो हनी सिंह, और अपने हिसाब से उतारना उसको, ढालना। हनी सच बोलो झूठ बोलो? बिल्कुल सच बोलो। सच बोलो, ओके। PTC knows हनी for 11 years, मैं और हनी 11.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आधा साल और। ठीक है ना। So उस टाइम हनी यो हनी सिंह नहीं थे, हनी थे। तो उसके 10 साल बाद हमें वापस काम करने का मौका मिला। तो मैं हनी से पहले दिन मिला, चेन्नई एक्सप्रेस का लॉन्च था उस दिन, प्रीमियर था, मुझे याद है, EC हॉल में, AC हॉल में। तो मैं पहुंचा होटल, मैरियट में मिले थे हम। तो इन्होंने बोला, सर देखो मेरा आपका पुराना रिश्ता है, आपने मेरा पहला वीडियो किया था, मैं आपको मना नहीं कर सकता, ऊपर से PTC से भी फोन आया है, तो आप ऐसा करते ना, आप मुझे फटाफट कुछ सुना दो, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करेंगे। मैंने बोला, हनी मैं 15 मिनट सुनाऊंगा एंड यूल डू द फिल्म। ये सर अच्छा हाँ बोल दो। ठीक है, सुनाया 15 मिनट। हनी आए इधर शाहरुख साहब के साथ। इन्होंने मुझे कहा था कि अब रात के 2 बजे मिलेंगे, कि मैं पूरा चेन्नई एक्सप्रेस खत्म करके आऊँगा। मैं 11 बजे पहुंचा, लोखंड वाला इनका फोन आ गया, पाजी किधर हो? मैं तो अंधेरी चला गया। अच्छा आ जाओ, मेरा काम खत्म हो गया, आप जल्दी आके मुझे सुनाओ। एंड हनी हर्ड इट द फर्स्ट टाइम दैट डे, जोक्स असाइड, he got the script within the first 2.5 hour narration. We never had a narration after that. Never. He used to in fact call me after that, say, sir वो scene उसमें ऐसा करेंगे, sir वो scene. So he got it. So he was Zorawar for me right from the start. And हमारी दोस्ती तो थोड़ी पुरानी सी भी है, but so it's been great, and he was very good, and he was stupendous. He was so hard working, because right from the start, 10 साल पहले जब हमने ग्लासी गाना किया था साथ में और ये पिक्चर, his growth as his passion for working hard and being a perfectionist, he in fact pushed me harder in Zorawar. He said, sir अभी आपने कामयाबी देखी नहीं है, मैंने देखी है, थोड़ी और मेहनत करते हैं इस पिक्चर पे। ये वर्ड थे, डर्बन में कहा था इन्होंने मुझे, नहीं मगर बोला था। So anyway, that happened, and we are here today, and thank you very much to all of us. I hope you love and share the trailer and the teaser and the movie coming forward on May 6th. So thank you very much, everybody. Thank you, Vanil. Thank you so much. Pawan sir, this one's for you. Working with Yo Honey Singh on this movie, Punjabi movie hai, pan India or internationally, people are waiting for this. Your thoughts on the same? First of all, thank you all for coming here. देखिए पंजाबी फिल्में जो हैं बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट्स के आसपास घूमती हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ जोरावर। टू बिगिन विद एक अलग सी कहानी सुनाई जा रही है। आई थिंक पंजाब में ये भी ज़रूरी है कि उनको आदत पड़े कि अलग कहानियाँ सुनाई जाएं। एंड फर्स्ट टाइम आई गॉट टू वर्क विद PTC, वेनिल के साथ एक फिल्म पहले करने वाले थे, नहीं की, और हनी के साथ काम करने का मौका मिला, जानने का। फर्स्ट टाइम आई मेट हिम। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हिम, इनफैक्ट मैं क्योंकि बहुत नेट सेवी नहीं हूँ, तो मुझे हनी सिंह के बारे में पता था, पर इतना बड़ा स्टार है, इंटरनेशनल स्टार है, ये नहीं मालूम था। वो इस फिल्म के दौरान पता चला। बट वाइल शूटिंग ये भी था कि जैसे कभी कोई अच्छा शॉट हुआ, फिर डायरेक्टर ने बोला अभी इस एंगल से लेंगे, तो हनी को होता था यार एक ही बारी में क्यों नहीं ले लेते हैं, अब फिर पता नहीं वैसा होगा कि नहीं होगा, आज नहीं दिए सिनेमा है। और फिर अगर कभी बहुत अच्छा सीन किया हमने, उसे लगा मज़ा आया और डायरेक्टर ने तारीफ़ की, तो हनी आके बोलेगा ऐसे नहीं उठ के जाएंगे, अभी थोड़ा नाच के बाहर जाएंगे। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ही वाज एंजॉयिंग एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ द शूट। एंड आई थिंक अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको मज़ा लेके करें। और मुझे तो बहुत मज़ा आया काम करके। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि
शूटिंग के वक्त तो जो हम अपना काम का आनंद ले रहे थे वो ले रहे थे, उसके बाद भी जो कि अक्सर देखिए स्टार्स के साथ ऐसा होता नहीं है, लेकिन शाम को हम सब लोग बैठते थे और once or twice he even performed for us. कि नो बट ही डांस्ड एंड यू नो कुछ गाने जो अभी तक नहीं आए हैं वो हमने सुने हैं, जो ये सोच रहा है दिमाग में चल रहे हैं मुझे। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस कि एवरीथिंग वाज वेरी रिलैक्स्ड एंड ही वाज एंजॉयिंग एंड ही यूज्ड टू गेट स्ट्रेस्ड आल्सो अबाउट इट। ऐसा नहीं कि अरे हो रहा है, यू नो देयर वाज अ डिजायर टू डू वेल एंड ऑल ऑफ अस, आई मीन अगर हम सिनेमा में हैं तो जब अपना काम कर रहे हो तो ऑफ कोर्स हमेशा एक फिल्म में डर रहता है कि कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा। हर फिल्म नई है, हर किरदार नया है। सो ऑन द होल आई रियली एंजॉयड इट और आशा करते हैं कि ये फिल्म जो है पंजाब के ऑडियंस के लिए एक नई तरह की फिल्म है। एक्शन ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक जितनी पंजाबी फिल्में मैंने देखी हैं ऐसा एक्शन नहीं हुआ है, यू नो। और पंजाब में बेसिकली अभी तक कॉमेडी और 84 के आसपास का पीरियड और रिलीजन, सो ये मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं। बट जोरावर इज नाइदर ऑफ दिस, वी आर टेलिंग अ स्टोरी विच जितना मैंने देखा आई थिंक आवर डायरेक्टर हैज डन अ वेरी गुड जॉब और हम सबको झेल के ही कंप्लीटेड द फिल्म। सो It was a walk in the park. तो आई होप कि जिस तरह की कोशिश की गई है और जो अप्रोच थी कि इस तरह की एक थोड़ी अलग फिल्म बनाई जाए, और मैं ये वर्ड अलग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पंजाब में इस एक अलग कहानी, सिर्फ एक कहानी जैसे हम फिल्म्स बनाते हैं, एक्शन हो, इंटरेस्टिंग किरदार हों, कैरेक्टर्स हों, तो ये एक अटेम्प्ट है एंड आई होप we'll get audience, we'll get your support and that's what we are looking for and USP तो ये है कि हनी की पहली फिल्म एज ए लीड, सो म्यूजिक तो अच्छा होगा ही, एक्शन भी अच्छा है। थैंक यू फॉर थैंक यू पवन सर। हमारे दूसरे प्रोड्यूसर साहब यहाँ पे मिस्टर नारायण, आपसे जानना चाहूंगा, अभी पवन सर बात कर रहे थे एक्शन की, तो एक्शन रोमांटिक फिल्म, एक्शन और रोमांस दोनों है इसमें, एंड यो हनी सिंह भी है, योर थॉट्स? I'll sum up the film in one word: passion. Everything about this film is passion. इसमें जो जज्बा है, जो स्टोरी में, जो एक्टिंग में, कैरेक्टराइजेशन में, म्यूजिक में, एक एक फ्रेम में आप देखेंगे, इट्स अ लेबर ऑफ पैशन। बिना पैशन के ये चीज़ बन नहीं सकती थी और पीटीसी ने इसे बनाने में मुझे नहीं लगता हमने कोई कॉमा, फुल स्टॉप या कोई एफर्ट ऐसा छोड़ा हो कि ये इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, नहीं। जो स्टोरी डिमांड करती गई, जो डायरेक्टर साहब की, हनी की डिमांड आती गई, आई थॉट लेट्स डू इट। सो दिस इज़ अ मूवी विच विल एक्चुअली चेंज द फेस ऑफ पंजाबी सिनेमा। इंटरनेशनली रिलीज़ होने वाली, इंटरनेशनली इसकी मेकिंग, इसका कैनवस पंजाबी फिल्मों को ये वापस उस मेयार पे ले जाएगा जहाँ एक ज़माने में पंजाबी सिनेमा होता था, जहाँ मेन लाइन बॉलीवुड स्टार्स, मेन लाइन बॉलीवुड ऑडियंस पंजाबी सिनेमा देखती थी। ये वापस थिएटर में उसी ऑडियंस को लेके जाने वाले हैं जो नॉन पंजाबी हैं, खास करके वो भी इस फिल्म को बहुत मज़े से देखेंगे। मेरे हिसाब से इसमें जज्बा है, हर चीज़ में बहुत जज्बा है। I want to say it's a film made in Punjabi language, but I would place it an Indian film internationally. That's how I would like to place this film. We did the showcase of this movie in the Melbourne Film Festival, and we were surprised that the entire cinema gave standing ovation as the last scene rolled out, which was a big achievement. पहली बात तो पंजाबी फिल्में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह, मेलबर्न जैसी जगह, जहाँ almost half the theater had white people, and they were, I think, getting the film from the subtitles, not by the language. But at the end, the entire cinema hall was giving a standing ovation to the film. So this is the biggest compliment to the Punjabi cinema that ever has happened. वो सुपर, एंड जो रिस्पांस यहाँ पे ट्रेलर को मिला है दैट इज आल्सो जस्ट अमेजिंग। पारुल, मैं मौके पे चौका मारूंगा, यू लुकिंग गॉर्जियस, सो आई जस्ट थॉट मैंने ऐसे पहले यही बोल दूंगा मैं, अब है ना, अगले पे छक्का नहीं। एंड नाउ What did he say? No, nothing. He just said अगले पे छक्का मारना चौके के बाद। थैंक यू, ही सेड यू लुकिंग गॉर्जियस। Thank you. थैंक यू पवन सर। यू एंड जोरावर, क्या होने वाला है फिल्म में? उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी ना। कुछ तो बताना पड़ेगा ना, दुनिया का सबसे हटके सवाल पूछा, अपने चरित्र के बारे में कुछ बताइए इन द मूवी।
जोरावर और मेरे बीच क्या होने वाला है, जैसे आपको स्नीक पीक मिली है ट्रेलर में कि आई एम रोमांसिंग हिम एंड आई फील सो लकी, ही इज सच अ बिग स्टार एंड आई एम ऑपोजिट हिम, सो I'm so happy to be part of this film first of all, and yeah. दो सुंदर चेहरे एंड आई कम टू अचिंत, वो अलग से कॉम्प्लीमेंट दूंगा. बानी, आप What does that even mean? नहीं, I'm coming What to do you you. even say? So, are you gonna लास्ट में ऐसा होने वाला है कि मतलब लड़कों से हनी फाइट कर रहे हैं और बानी और पारुल आपस में गुत्थम गुत्था करते हैं? Wow, that would have been exciting, no? Sir, write this down. That's another movie. That's another film. सीक्वल की बात हो गई यहाँ. बानी, your character. He loves cat fights. Look at his face. Who, me? हाँ, मतलब ठीक है, मसाला मिलता है, बात करने को मिलता है. हुआ ऐसा कुछ बानी? You have to give us some ऐसा inside stories यार. What's the question? कुछ लड़ाई वगैरह हुई, मारधाड़ कुछ? It's an action. I mean, there's so much action in this film, so you get to see a lot of people getting their asses whooped. That's for sure. There are a lot of guns being fired. I mean, that's as blatantly as I can put it. But you guys will love it because if anybody loves action, and especially in Indian films, you love the drama of it, right? Everybody feeds off it. They love it. They're like, yes, hit him, you know, Maro. Usko, I was going to swear, I didn't, thank goodness. So that feel happened, you know, like, yeah, usko Maro, ye karo, wo karo, all that. So that will happen in this movie because when I was watching, when you watch like little snippets that, you know, Honey would send or Vinil would send me and they'd be like, hey, check this out, check that out. I'd be like, Interesting oh thing. my goodness. Fun fact. What? It's true. Fun fact. What? Bani was one of the first actors I had called because I wanted her to play this role right from the start. What? Sir, आप तो दिल में रहते थे. तो मैंने बानी को बोला. She said, "What's my character?" I said, "You hold guns, shoot people, hit people, and you don't talk much." I'm doing it. I was like, that's amazing. I don't even need to read the script. No, that's a complete lie. I was sold on the characterization of the character, but I did read the script and I fell in love with the story. And only after I read the whole story that I asked Vinil, like, so which character am I? And he was like, which character do you think you are? I said, no, which character am I? So then he told me, it's Zoya. And I was just like, that's amazing. And I get to shoot people? He goes, yeah. And I was like, and you're going to pay me for this? He said, yeah. I was like, and it's in South Africa? He said, yeah. I was like, and Honey's doing the music as well. He goes, yeah. I was like, why am I not there already? Like, let's make this movie. So it was a lot of fun. And there's a lot to be said about, like Pavanji also said that, you know, as when you're doing a film and it's a Punjabi film, and for me it's my first Punjabi film, and getting to work with actors who are supremely talented, who I'm happy to sit next to right now as well, and also for working with people like Honey, who happen to be so enthusiastic and want to be so involved with every scene. Because like Pavanji also said very rightly, कि बड़े स्टार होते तो sometimes it's just like, oh, you've been given a big film, you're the hero of the film, you know, it's your first film, you don't really care about it. But it was not like that. He was so involved in the process. I think all of us were so involved in the process. And I really have to thank Pavanji because there was a very big scene that he and I have to do together. And मैं उनके पास गई थी and I said, can we please workshop on this scene? Because मैं बहुत nervous थी, I wanted to do a really good job, you know. मैं भी nervous था. आप nervous बिल्कुल नहीं थे, इतना झूठ बोल रहे हैं. And he was like, of course, let's sit down. And then पहले तो 2 घंटे I was sitting watching him do his work, you know, process उनका क्या होता है. And I was just like, oh my goodness, I don't even have a process. No, but it was a very big. Vinil told me, I just got to shoot people. What is this? I was like, I have to act? What? No, but it was a lot of fun. बहुत ही मजा आया. And there's I mean, हमारी सबकी bonding बहुत ही solid सी थी. If I'm talking too much, I can stop. If you guys want me to stop, should I stop? I think I should stop. No one's saying No, it's stop. okay. Everybody's like enjoying No the one's thing. listening. Stopped listening 5 minutes ago. So, Achin, tell us, how was your experience? Achint, yeah, Bani, thank you so much for that. Yeah. Well, in my case, I was a last minute entry. I got a call. भाई कोई एक्टर हैं जो शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई, वो पहुंच नहीं पाए, उनके कपड़े रेडी हैं और सेट रेडी है, तो अगर आप कल चंडीगढ़ पहुंच जाएं तो फिर वहां से हम, हाँ, मेहरबानी हो जाएगी, हम वहां से You were the first choice. आपका नंबर नहीं मिला था. हाँ. Well, जैसे आपने देखा, it's all guns and roses happening here, but mine is the emotional part, I suppose. So, yeah, the heart, the emotional part in this, and I'm the Mata. So I'm Honey Singh's Mata. वो कितनी मेहनत करनी पड़ी. So yeah, that's it. So as I said, I met everybody. In fact, Pavan, I still knew. थोड़ा बहुत मिले थे हम पहले. I met everybody for the first time, and rest तो सब लोग सब कुछ बता चुके हैं. But the best thing is the vibe, the energy, and I think the unity and the fun that we had together. Which I mean, like I say, inside out, somewhere down the line you'll see it. I mean, it's portrayed along the way.
I think that's it. I think everybody said everything by now. Thank you, Anchit. And Honey performing for us every Yeah. evening free of cost. Free of. And, yeah, I mean, the best part. I never have to go for a concert ever again. because once we've or had twice private it shows. happened. He said, "Paji thalle aa jao, main speaker leke aa raha hu." Which lots of people, you know, they're queuing up for tickets and all. So that way, I mean, PTC doesn't know that. Otherwise, they would have said कि ये पैसे कम करो. Yeah. Also, a very interesting fact, a recipe that I learned from Honey, because there was these nights that he would come to our hotel and he would cook chicken for everybody. Because there'd be nights when everybody after the pack up, they'd want to hang out and stuff. He would invite everybody to his room and there'd be lots of drinks and all of that. And he would actually marinate. इनकी इतनी सही recipe And है chicken- eventually he shifted to our hotel. और फिर shift भी कर दी क्योंकि he was like यहाँ इतना प्यार है मैं यहाँ आ रहा हूँ and all that. But yeah, so he would marinate the chicken. I feel like giving the recipe. So it's like eggs में you marinate the chicken, you put spices. I mean whatever. He'll tell you the recipe, but it was amazing. So Honey can also cook in case nobody knew that. Now you know. Yeah, he just said that yesterday. He can cook Portuguese chicken. Yes, Portuguese style. And how he got the recipe is also a very interesting story, which he might tell you later on if he feels like it. That's only for close friends. Sorry. Privileged information only. That's for another time. Yeah, let's come back to Zorawar. Yes, so Zorawar. Yes, Zorawar is awesome. जोरावर से भी पूछ लेते हैं. I know उनसे भी सुनना चाह रहे हैं आप इस फिल्म में. Was it difficult, Honey? मतलब इतना सारा प्यार मिल गया, ये अच्छी बात कर ली. तकरार की बात भी बताओ थोड़ा. Was it difficult for you? मुश्किल तो बहुत था एक्टिंग करना. और जब स्टोरी सुनी थी मैंने तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि एक सीरियस और बहुत सीरियस ड्रामा है, इंटेंस ड्रामा है और साथ में एक्शन है. एक्शन का भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था. वो गोना कीप इट यू नो हैंड टू हैंड फाइट और थोड़ा सा रियलिस्टिक सा रखेंगे. तो इंटरेस्टिंग था सारा कुछ. लेकिन मेरे को थोड़ा सा था कि हाँ मुश्किल होगा क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर साथ में हैं. मुकुल इज़ देयर एंड पवन जी इज़ देयर. तो बाकी मेरे को विनिल ने बोला था कि जितने बढ़िया एक्टर साथ में होते हैं उतना आर्टिस्ट के लिए आसानी हो जाती है. तो मेरे को सुनने में तो सही लग रहा था. मैंने कहा ये पता नहीं है सही में होगा कि नहीं होगा. तो लेकिन फाइनली मेरे को बहुत हेल्प मिली. मैं कहना चाहूँगा बानी ने भी मेंशन किया, पवन जी ने बहुत मेरी हेल्प करी. इनफैक्ट मेरे 2-3 सीन पवन जी के साथ बहुत सीरियस हैं. तो मैं पहले बहुत सीरियस हो जाता रहा कि मैं कैसे करूँगा इसको, क्योंकि मैं अपने म्यूज़िक वीडियोज़ में जो लिखता हूँ वो मैं परफॉर्म कर देता हूँ. इट्स वेरी ईजी, दैट्स माई ओन स्क्रीन प्ले. लेकिन यहाँ पे मैं एक जोरावर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ निभा पाऊँ उसको ढंग से. तो स्पेशली एक सीन था जिसमें जोरावर एक स्पेशल एजेंट है स्पेशल फोर्सेस का. तो एक सीन बहुत सीरियस है, वहाँ पवन जी और मेरा सीन है साथ में. तो शोल्डर टू शोल्डर शॉट था. मैं वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे. वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है. तो मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वो करें कैसे. इनफैक्ट विनिल भाई ने बहुत हेल्प करी मेरी थ्रू आउट द मूवी. ये मेरे को पीछे से वॉइस ओवर देते रहे, जहाँ मेरे सिर्फ एक्सप्रेशन आते होते थे ये मेरे को पीछे से वॉइस ओवर दे रहे होते थे. तो मेरे एक्सप्रेशन फिर उस हिसाब से बदलते थे. तो इन लोगों की वजह से जितना भी मैं कर पाया. आई होप सबको पसंद आएगी. तो उस सीन की मैं बात करूँ जो पवन जी के साथ था, वो बहुत सीरियस सीन था और उसमें शोल्डर टू शोल्डर शॉट था. तो पहले विनिल ने बोला कि पवन जी का लेते हैं, उसमें वो दिखेंगे, तुम्हारा शोल्डर दिखेगा, तुम्हें फील आ जाएगी कि तुम्हें किस मूड में रहना है इस सीन के दौरान. मैंने कहा ठीक है. तो वो सीन इतना ज़्यादा सीरियस है, इतना ट्रैजिक है कि उस मोमेंट पे जोरावर को कुछ पता लगता है उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में. तो हमने ये तो डिसाइड किया था कि फौजी आदमी है, रोएगा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उतना वो सीरियस हो जाए, उतना टच कर जाए उसको वो मोमेंट कि वो स्क्रीन पे भी दिखे लोगों को कि हाँ ये किरदार अच्छी तरह निभाया गया है. तो जब पवन जी का देखा मेरे को फील आ गया कि हाँ कुछ हम कर सकते हैं, मैं अब इस पर रिएक्ट कर सकता हूँ. तो जब पवन जी का शोल्डर था और जब मेरा फेस था, जहाँ मेन सीन जो मतलब वो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन वहाँ मेरे आने थे, वहाँ पवन जी ने जब क्यू देते हैं तो मेरे शोल्डर पे मेरे हाथ रखा हुआ और मेरे को क्यू दे रहे और उन्होंने वो पूरा क्यू रोते रोते दिया, रोने की आवाज़ में, सो दैट कि मेरे को फील ज़्यादा मिले. और धीरे धीरे मेरा शोल्डर यूँ दबाते गए. तो वो सीन मेरे लिए इतना इंटेंस हो गया. इनकी तो पीठ दिख रही है, इनको वैसे कहना नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हेल्प मिले कि मेरे एक्सप्रेशंस बूस्ट होकर सामने निकले और मैं वो सीन ज़्यादा अच्छी तरह कर पाऊँ. तो रियली वांट टू थैंक पवन जी फॉर दैट. तो ऐसा होता नहीं है. मैंने पंजाब में एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर काफ़ी लोगों को रिकॉर्ड किया. जब मैं म्यूज़िक डायरेक्टर था तो मैं वहाँ देखता रहा, सिंगर्स के अंदर होता रहा कि मैं तो बढ़िया गा पाऊँ ना गा पाऊँ, वो ना गा पाए बढ़िया. तो वो मैंने अभी कुछ एक्टर दोस्त भी हमारे, तो वो भी ये आपस में देखते कि यार मेरे से एक्टिंग होना हो, साला वो ना कर पाए बस. तो यहाँ उल्टा था, यहाँ पे इतनी एक दूसरे को सब हेल्प कर रहे थे और सारा कुछ बढ़िया चल रहा था.
और शूटिंग के बाद तो आपको बताया इन सब ने क्या क्या मस्ती करते रहते रहे हम लोग। डर्बन में बहुत फन रहा क्योंकि वो डर्बन मेरे लिए नया था, मैं पहले कभी साउथ अफ्रीका गया नहीं था और बहुत बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था थ्रू आउट। और जहाँ तक सबसे मुश्किल काम मेरे को जो करने को इस फिल्म में लगा, वो जो 15 से 20 मिनट का फिल्म में जो रोमांस है जो पारुल के साथ करने को मिला, वो इतना मुश्किल था मेरे लिए। और ये हमेशा वो बोलती थी क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। And on top of it, you will crack jokes when we are having our romantic scenes. And he would rap in those scenes also. और मुझे समझ में नहीं आता रहा मैं अब कैसे रोमांस करूँ, मेरे को शर्म आ रही होती थी मैं कैसे रोमांस करूँ। तो मतलब एक लड़की के साथ मैं कभी किसी फ्रेम में दिखा नहीं ना आज तक, मेरे वीडियो में होती है बहुत सारी लड़कियाँ। तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत बहुत मज़ा आया। चंडीगढ़ में भी बहुत मज़ा आया, पटियाला में हमने शूट किया, हमारे अपने शहर में, दोस्तों के शहर है, और डर्बन में भी। थ्रू आउट सबका सारे लोगों का बहुत थैंक्स है। मुकुल ने बहुत हेल्प करी काफ़ी सीन्स में एज अ सीनियर एक्टर। और अचिंत जी का इनफैक्ट एक सीन है मेरे साथ बहुत इंटेंस, तो वो जब मेरे को उस सीन में कुछ भी नहीं करना था, मेरे को उस सीन में इनके पास बस बैठना था। और जब मैंने इनको एक्ट करते देखा फर्स्ट टाइम, वो मेरे शुरू के 10 दिन का स्केड्यूल था चंडीगढ़ में। जब मैंने इनको देखा एक्ट करते हुए सीन, तो मैंने फटाफट इनकी फ़ोटो खींची, मैंने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, एक्टिंग इज़ नॉट जोक मैन। सो बहुत इंटेंस सीन इन्होंने किया। सबकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन है इस मूवी के अंदर। और जैसे इन्होंने फिल्म भगाई है, मतलब भागती है पूरी फिल्म, स्क्रिप्ट भागती है, एक कहानी भागती है एक लड़के की। और जहाँ तक जोरावर का कैरेक्टर का कंसर्न है, हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, सबके लिए जो रोल मॉडल मुझे लगता है जो है, हमारे लिए तो बचपन से रहे हिंदुस्तान के फौजी और स्पेशल एजेंट्स जो हैं और जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, वो लोग शुरू से एक रोल मॉडल रहे हैं हम सबके। तो उस तरह का किरदार करने को पहली बार ही मिला और बहुत अच्छा लग रहा, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा। Yeah, this is all about Zoravar, what I feel. Amazing, yeah. और Let me add here, Honey is going to be the surprise of the package. Everybody is well established in their field and they know he's going to be a surprise. And my challenge is everybody will come back and say, wow, we didn't expect this, wow. बस मेरे को एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी यहाँ पे, जैसे आप पारुल को बोल रहे थे ना कि इंटेंस सीन्स में भी ऐसे रैप कर रहे हो। अगर ज़्यादा रैप करोगे ना, फिर सुहाग रात पे भी सुहाग रैप हो जाता है। कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नाउ इट्स ओवर टू द मीडिया। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं जी, प्लीज हो जाए। तो we'll have a quick photo up and then we over to the media. Yeah. फिर लगानी पड़ेगी ना।
बहुत टाइम से आप कहीं नजर नहीं आ रहे थे, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आप इतने वक्त से कहाँ गायब थे? ये अभी बहुत लंबी कहानी है। ऑलमोस्ट 18 महीने तक मैं गायब था और काफ़ी अफवाहें थी कि इधर हूँ उधर हूँ यहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो अभी हम लोग जोरावर के लिए यहाँ पे जोरावर की बात करते हैं। बहुत जल्द मैं एक बहुत एक्सक्लूसिव और डिटेल इंटरव्यू करूँगा आप लोगों के साथ, जिसमें वो पूरी स्टोरी बताऊँगा कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट फेस है मेरी लाइफ का। सो आई विल टेल इट देन। थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली बता सके। यू आर क्रिएटिंग मोर No, सस्पेंस नाउ। no, not suspense. मतलब I want to explain it. मतलब अभी ये वक्त नहीं है वो सब बात करने का, तो आराम से बताऊंगा। Right? Next. Honey, hi. A question for you, of course. You know, your career is going great guns and it continues to do so as a music composer and someone who makes music. What prompted Honey Singh to turn to acting? You know, considering we've seen musical sensations over the past who've taken up acting assignments and their musical careers have come to a standstill. So was that somewhere the apprehension, or did that thought ever come to your mind? The thing is as far as myself is concerned, I don't consider myself just a rapper or just a singer. I'm a music producer, lyricist. I'm a poet. I'm a singer as well, rapper as well. So, and acting is also a part of big entertainment. So I call it myself an entertainer. So that's the only thing which is left, acting. So I really want to learn acting because I feel it's a very tough job, you know, to portray someone else's character and to behave like that on screen. It's really tough. It's really hard. So I always wanted to learn, and I'm thankful to PDC who gave me this opportunity to do this movie. And I learned a lot in this movie, how to do acting. You know, what I believe कि काम कर कर के काम सीख सकते हैं, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट में जाके नहीं आप सीख सकते। तो म्यूज़िक भी मैंने ऐसे ही बना के काम कर कर के ही सीखा है, इम्प्रूव हुआ धीरे धीरे, कैसे कैसे करते करते म्यूज़िकल मेरा लेवल बहुत बढ़ा। तो उसी तरह मुझे लगता है कि एक्टिंग भी कुछ अगर मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मैं कुछ भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। इससे पहले ये स्टोरी बहुत बढ़िया थी और एज अ लीड मुझे लिया जा रहा था, तो मैं थोड़ा और सीरियस हुआ। इससे पहले 1-2 अटैम्प्ट मैंने और किए हैं, वो ऐसी फ़न के लिए। तो बट उसमें भी काफ़ी कुछ सीखा, तभी शायद उसकी हेल्प से ये हुआ कि आज किसी ने सोचा कि मुझे शायद एज अ लीड भी ले सकते हैं, तो इसके बाद कुछ और भी कर सकते हैं हम आगे। लेट्स सी। But don't you think the focus will then shift? ना, मैं तो इच्छाधारी नाग हूँ, मेरे 7 मुंह है, मैं बहुत काम कर सकता हूँ, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। हनी सिंह, हनी जी, on your left, सबसे पहले सत श्री अकाल, and the trailer is fantastic, congratulations. My question to you is, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला you are acting in this film as a lead? What was your first reaction? कुछ नहीं, मुझे स्टोरी बहुत बढ़िया लगी, कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो लेट्स रोल इट, लेट्स डू इट। और फाइनली मैं ट्रैवल इतना कर रहा था कि मैं कहने की बात नहीं है, मैं 7 दिन में 5 अलग अलग शहरों में 3 अलग अलग मुल्क में होता रहा उस दौरान। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि यार एक जगह टिक जा तू, तेरे को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जा रहा है, तो सो नहीं रहा है बिल्कुल, तो सोना ज़रूरी है और एक शहर में रहना ज़रूरी है ज़्यादा वक्त तक। तो मेरे को था कि हाँ, एटलीस्ट हम शूटिंग करेंगे तो 1-1.25 महीने एक शहर में तो टिकने को मिलेगा कम से कम। तो वो सबसे बड़ा रीज़न था। तो वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, फिल्म की स्टोरी सबसे बड़ा रीज़न थी। सो आपको किसी ने टिप्स दिए थे, आपके अपने जो बॉलीवुड से फ्रेंड्स हैं या कोई भी आपके जैसे शाहरुख हो गया, किसी से आपने कहा, किसी से शेयर की ये बात की? नहीं, मैंने किसी को उस टाइम उस वक्त बताया नहीं था, बल्कि मेरे को सब पूछ रहे थे तू कहाँ जा रहा है, डर्बन में क्या करने जा रहा है, तो मैं कहा मैं ऐसे कुछ शूट करने जा रहा हूँ, किसी को बताया नहीं था। लेकिन सबको पता लग गया था कि मैं एक पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ, तो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, सबको पता है। इनफैक्ट शाहरुख भाई से भी उस दिन बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि उनको भी दिखाया मैंने ट्रेलर फ़ोन पे जब हम लोग अवार्ड्स पे मिले थे। तो एवरीबडी इज इनकरेजिंग मी कि बढ़िया कर ही जाओ। ओके, हनी सिंह, आपको कितना टाइम, मतलब कितने दिन की शूट थी आपकी, एंड इज इट दैट कि थोड़ा शूट डिले हुआ था बिकॉज ऑफ योर एब्सेंस, कुछ ऐसा कुछ था सर? नहीं, सिर्फ एक 2 दिन का क्लाइमैक्स का स्केड्यूल था जो रह गया था, जो मैंने फिर बीच में कंप्लीट किया उसको, बाकी सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका था। फ्रॉम ट्रेलर इट सीम्स कि इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी पंजाबी फिल्म की, अगर हम बात करें स्केल की बात करें, इज इट ट्रू? एंड डू यू थिंक दैट फ्रॉम दिस मूवी इट विल सेट अ न्यू बेंचमार्क? अब प्रोड्यूसर्स आपके भी इस पे हम राय जानना चाहेंगे आपसे भी, प्रोड्यूसर जी। हाँ, जवाब तो वही देंगे, बाकी इतना पता है कि मैं हनी सिंह है तो सफ़ेद हाथी है भाई। You're right, it is the most expensive film ever made in Punjabi, and we think that it will set new benchmarks. Yes, indeed. Hi, Honey. Congratulations for the trailer. The trailer looks amazing.
बीच में रिपोर्ट्स आ रहे थे कि चीज़ें आपके और दीपिका के बीच ठीक नहीं है, दीपिका पादुकोण। तो जानना चाहूँगा क्या चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं? नहीं ऐसा 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 तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पहली बार सुना, ये नया नया आ रहा है ये क्या, ये तो कहीं नहीं सुना। आपके और शाहरुख की जो टसल की न्यूज़ आई थी, कुछ भी नहीं है उससे ऐसा, रिलेटेड है ये? कभी भी नहीं है ऐसा। उनसे तो बहुत अच्छे रिलेशन, इनफैक्ट शाहरुख भाई से मैं मिला अभी तकरीबन 1.5 साल बाद, अवार्ड्स पे हम लोग मिले थे, मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब करीम भाई वगैरह सब, मोहम्मद भाई वगैरह सब लोगों के घर पे फ़ोन आते थे कि कैसा है, मैं कैसा हूँ। दे वर रियली कीपिंग चेक कि कैसा है कैसा नहीं। हनी इस फिल्म में इधर I'd just like to add no tips on how to romance your leading lady by the king of romance for the film, considering you are very nervous. ना आई डोंट थिंक, अभी तक उन्होंने बताया नहीं, उनसे लूंगा डेफिनेटली मैं ज़रूर टिप्स। हनी इस फिल्म में ਤੁਸੀਂ म्यूजिक एक सेकंड, ये मिक्स हो रहा है सब। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? म्यूजिकली मुझे लगता है कि मिस्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने मुझे पूरी लिबर्टी दी कि स्टोरी के हिसाब से ज़्यादा गानों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पूरी फिल्म भाग रही है और इसका स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है। तो तकरीबन सिर्फ 3 ही गानों का मौका मिला करने का फिल्म के हिसाब से। तो 3 गाने कोशिश करी है कि बहुत अच्छे हैं और म्यूजिकली बहुत अर्बन रखने की कोशिश करी है गानों को। जो अभी गाने आ रहे हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਨਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? नहीं ये तो बहुत अच्छी गल है। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज माई 3rd फिल्म और तीनों फिल्मां अलग कहानियां न, अलग तरह की फिल्मां हैगियां। एंड आई थिंक USP हैगी है कि एक तो हनी सिंह एंड देन ਇਹੋ जी कहानियां जनरली पंजाब च अटैम्प्ट नहीं की जाती। और मैं हमेशा कहना कि पंजाब इज़ फुल ऑफ स्टोरीज, यू नो। इवन इन बॉम्बे द फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाबी है, यू नो। सो पंजाब में कहानियों की कमी नहीं, उस ज़मीन में बहुत कहानियाँ हैं। और अगर जैसे ये फिल्म, अगर आप एक्शन देखें, जैसे ट्रेलर आप लोगों ने देखा है, जिस तरह से जिस भाव के साथ बनाई गई है, आई थिंक देयर इज नो लुकिंग बैक अगर पंजाबी फिल्म में, और ऑडियंस की कोई कमी नहीं है। तो आई रियली यू नो आई वांट टू कांग्रेचुलेट PTC फॉर टेकिंग दिस स्टेप, व्हिच इज अ वेरी गुड स्टेप टू यू नो टू बिगिन विद। All right, cool. Thank you so much, ladies and gentlemen. We are running late, so we have to. Yeah. We'll take one last question. एक आखिरी सवाल. Thank you. Sorry. Hello. Yeah. You know, your friend Himesh has a film releasing that is Tera Surur, and as a part of film promotions, he had many live musical concerts to promote the film. So, would you be having a similar plans to promote your film, having live concert at different places in No, India? not. We haven't think anything like that, but definitely we'll plan something else. Let's see. Yeah. Honey, last time when we met Bhushan Kumar, he said that the reason why you are not present for all the music launches that happen is because you're not keeping well. We would like to understand what is the exact nature of illness that you're suffering from. I'll tell you. I'll explain you later, man. But why not today? Not now. Right now. It's a serious topic. He's not suffering from. Today He is was. our. Yeah. Okay. You're romancing Parul in the film. I would like to understand what is your brand of romance. Is it the Shah Rukh Khan type of romance or the Imran Hashmi type of romance? It's a Zorawar kind of romance. Cool, eh? Yo-yo kind of romance. ठीक है. Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys have been amazing. See, time limit है. So. How do you look at it? One last rap we'll do. रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। Just killed it with this जवाब of yours. ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਜਸ਼ਨ ਦੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਖੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਨ ਦੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਵੈਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੋਕੋ। ਪੈਗ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਟ ਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਲਾ ਮਰਜੀ ਮਾਲ ਚੱਕੋ ਚਿੱਟਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ। ਕਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਮੇਰੀ UK ਦੀ ਫਲੈਟ, ਫਲੈਟ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਅੱਜ ਟੈਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Ladies and gentlemen, give it up for Zorawar.